So today we are going to discuss class 12th visual arts unit 2, which is the Rajasthani schools of painting. Few things to keep in mind is A, आपका थ्योरी 30% ही कवर करेगा, आपके 70% मार्क्स प्रैक्टिकल्स के हैं। तो आप प्लीज एक एक लाइन मगअप करने में मत रहिएगा। मैंने पास्ट 5 years क्वेश्चन पेपर्स देखे हैं। टॉपिक्स बार बार वही रिपीट होके सेंटेंसेस अलग तरीके से फ्रेम करके वही वही क्वेश्चंस वही वही टॉपिक्स बार बार पूछे जाते हैं। तो मैं जो भी इम्पोर्टेंट चीजें होगी उन्हें हाईलाइट कर दूंगी एंड हिंदी में अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी जहां पे आपको ध्यान देने की जरूरत है। बी पॉइंट, अगर आप मेरी एक वीडियो को 2 से 3 बार सिर्फ सुन भी लेते हैं, यू विल बी केपेबल ऑफ राइटिंग रियली गुड आंसर इन योर एग्जामिनेशन। सो आप सिर्फ 2 से 3 बार सिर्फ सुन लीजिए तो भी इनफ है। अगर आपको लग रहा है कि ये भी बहुत स्लो प्रोसेस है, आपके पास एग्जाम के लिए ज़्यादा टाइम नहीं है या कुछ, तो आप स्पीड बढ़ाकर वीडियोस को सुन सकते हैं अपना काम करते करते या कुछ भी और काम करते करते। आप सिर्फ 2 से 3 बार मेरी वीडियोस को सुन लीजिए और एक बार चैप्टर हो सके तो गो थ्रू कर लीजिए। इसके अलावा आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज थ्योरी ओनली इज theory is only of 30% of your overall weightage for the examination, and the 70% weightage is from your practicals. So you need to focus on your practicals as well, right? And इतने सारे और सब्जेक्ट हैं, राइट? तो आप प्लीज इतना एक एक लाइन को मगअप करने में मत रहिए। जो जो मैं इंपॉर्टेंट बता रही हूँ आप सिर्फ उन्हीं पर ध्यान दीजिए। सो लेट्स स्टार्ट। The term Rajasthani schools of painting pertains to the school of painting that prevailed in the princely kingdoms of Tikhanas of what roughly constitutes Rajasthan and parts of Madhya Pradesh in the present time, such as Mewar, Bundi, Kota, Bikaner, Kishangarh, Jodhpur, which is also known as Marwar, Malwa, Sirohi, and other such principalities, largely between 16th and early 19th centuries. Scholar Anand Kumar Swamy in 1916 coined the term Rajput paintings. ये अक्सर शॉर्ट में आता है क्वेश्चंस, कभी भी इसके ऊपर लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आया है। To refer to these as the most rulers and patrons of these kingdoms were Rajput. अब ये फैक्ट आपको लर्न करना पड़ेगा। आनंद कुमार स्वामी 1916 what he did, he coined the term Rajput paintings. Why? Because almost all the rulers of this area were Rajputi rulers. जितने भी सारे शासक थे या फिर जो सारे राजा थे वो राजपूत थे, इसलिए इसने राजपूत पेंटिंग्स बोला उसे। He especially coined it to categorize and differentiate this group from the much known Mughal school of painting. Therefore, उस टाइम पे मुगल स्कूल पेंटिंग भी बाद में आई थी, तो इसको डिफरेंशिएट करने के लिए राजपूत पेंटिंग्स बोला था। Therefore, Malwa comprising princedoms of central India and the Pahari schools that comprises the Pahari or mountainous Himalayan region of northwestern India was also in the ambit of Rajput schools. Northwestern India was also in the ambit of Rajput schools. आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा fact. For Kumar Swamy, the nomenclature represented the indigenous tradition of painting prevalent in the mainland before the conquest by the Mughals. Studied in the Indian paintings have come a long way since then, and the term Rajput schools is obsolete. Specific मैं आपको इसका मतलब बता देती हूँ। बेसिकली इसने क्या किया था कि सारी जो उस टाइम की पेंटिंग्स थी अपने एरिया की, इसको इनफैक्ट जो मध्य प्रदेश में भी थी उनको राजपूत पेंटिंग्स बोल दिया। बाद में हमको कैटेगराइज करना पड़ा कि नहीं, वो पहाड़ी पेंटिंग्स अलग है, राजस्थानी पेंटिंग्स अलग है। तो राजपूत पेंटिंग्स को बाद में 2 कैटेगरीज में बांटा गया, क्या? राजस्थानी पेंटिंग्स एंड पहाड़ी पेंटिंग्स। बस आपको ये लर्न करने की जरूरत है और कोई फैक्ट इस पूरे पैराग्राफ में से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। Though separated by short distances, the pictorial styles that emerged and evolved in these kingdoms were significantly diverse in terms of the either execution, fine or bold, preference of color, brilliant or gentle, compositional elements, depiction of architecture, figures and nature, modes of narration, affinity of naturalism, or had emphasis on extreme mannerism. Basically, ये पूरा जो पैराग्राफ है ये आपको ये बता रहा है कि राजस्थानी और पेंटिंग में अलग अलग तरह का काम था, इसलिए हमें इसको बाद में डिफ्रेंशिएट करना पड़ा था। जैसे राजस्थान में बोल्ड एंड फाइन काम हुआ था, बोल्ड काम हुआ था या फाइन काम हुआ था। पहाड़ी में क्या कौन सा हुआ था? कलर प्रेफरेंसेस दोनों का ब्रिलियंट था, एक का जेंटल था। एक में कॉम्पोजिशनल एलिमेंट ज्यादा था, एक में आर्किटेक्चरल एलिमेंट ज्यादा था। फिगर्स ज्यादा थे, एक में नेचर के ऊपर ज्यादा फोकस किया गया था। तो दोनों के अंदर जो डिफरेंसेस थे वो बहुत ज्यादा थे, इसलिए हमें इसको 2 कैटेगरीज में डिवाइड करना पड़ा था। किसको?
राजपूत स्कूल्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड करना पड़ा था, पहला राजस्थानी एंड दूसरी पहाड़ी। पेंटिंग्स वर पेंटेड ऑन वासलीस, ये इंपॉर्टेंट है। Layer thin sheets of handmade papers glued together to get the desired thickness. The outline was sketched on vaseline in black or brown, followed by the colors fixed therein by brief notations or sample patches. Color pigments were predominantly obtained from minerals, precious materials, metals like gold and silver that were mixed with glue as binding medium. आप इतना याद रख लीजिए। सो बेसिकली वासलीस क्या होता है कि जितने भी हम मिनिएचर पेंटिंग्स बनाते हैं, ये कैसे बनाते हैं, एक हैंडमेड पेपर होता है, उनको एक के ऊपर एक चिपकाते हैं और मोटा बना देते हैं पेपर को। एक के ऊपर जब हम चिपकाएंगे तो वो मोटा हो जाएगा। उस मोटे पेपर के ऊपर फिर मिनिएचर काम करते थे। कलर्स कैसे यूज लेते थे ये लोग? प्रेशियस मटेरियल्स गोल्ड और सिल्वर से कलरिंग करते थे। इसके अलावा जो कलर्स यूज लेते थे वो जो नेचुरल मिनरल्स से जो निकले हैं कलर्स, वो यूज लेते थे, जो कि नेचुरल कलर, जैसे रेड की जगह सिंदूर, ब्लैक चारकोल से निकला है, वैसे नेचुरल कलर्स यूज लेते थे। पेंट ब्रश के लिए कैमल और स्क्विरल्स के जो हेयर होता है ना, उसके ब्रशेस बनाते थे। और कंप्लीशन मतलब बाद में एंड में जब पूरी बन जाती थी पेंटिंग, उसके बाद ये लोग क्या करते थे, अगेट एक टाइप का पत्थर होता है, इधर लिखा हुआ है, द पेंटिंग वाज बर्निश्ड विद एन अगेट टू लेंड इट टू यूनिफॉर्म शीन एंड एन अपीलिंग रेस्पिरेटेंस। बेसिकली अगेट एक टाइप का पत्थर होता है, उसके ऊपर वो घिसते थे, क्योंकि अनइवन है, जब हम एक के ऊपर एक पेपर चिपकाएंगे वो अनइवन है, उसको घिस के इवन बना देते थे। और जब हम उसको घिसते थे तो जो पेंटिंग्स उसमें ब्राइटनेस भी दिखाई देती थी। The painting activity was kind of a teamwork, with a master artist composing and doing preliminary drawing, followed by pupils or experts of coloring, portraiture, architecture, landscapes, animals, etc., taking over and doing their bit, and finally the master artist putting the finishing touches. The scribe would write the verse and the space left for the one. ये आप पूरा हाईलाइट करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ इतना समझ लीजिए कि होता क्या था बेसिकली, कि पेंटिंग जो है ना उस टाइम पे एक ग्रुप एक्टिविटी होती थी, एक टीम वर्क का काम होता था, जिसके अंदर क्या होता था कि एक जना ड्राइंग बना रहा है, एक जना लैंडस्केप बना रहा है, जो एनिमल में एक्सपर्ट है वो एनिमल बना रहा है, जो कलरिंग में एक्सपर्ट है वो कलर कर रहा है, जो कैलीग्राफी में स्केच है वो कैलीग्राफी कर रहा है। और एंड में क्या होता था, जो मास्टर आर्टिस्ट होता था वो उसको फिनिशिंग टचेस दे देता था कि किसी ने कुछ गलती तो नहीं की है, बस ये काम है। इसको आपको कोई रटने की जरूरत नहीं, आप अपनी भाषा में लिख सकते हैं। Next, themes of paintings and overview. By the 16th century, Vaishnavism in the cults of Rama and Krishna had become popular on the parts of the western, northern and central India as part of the Bhakti movement that had swept the entire Indian subcontinent. Krishna had a special appeal. He was not only worshipped as God, but also an idol lover. I'll tell you the whole paragraph got short with meaning. The notion of love was cherished as a religious theme and where a delightful synthesis of sensuousness and mysticism was perceived. Krishna was perceived as the creator from whom all creation was a supportive imagination, and Radha as human soul, who led to offer herself to the god. The soul's devotion to their deity is pictured by Radha's self-abandonment to her beloved Krishna, epitomized in Geet Govind paintings. So basically, उस टाइम पे भक्ति मूवमेंट अपनी पीक पर था। भक्ति मूवमेंट क्या था? जो हमने जो वैष्णविज्म को फॉलो करते थे, जो कृष्ण और राम जी को पूछते थे, जैसे हमने मीराबाई और इन सब का पढ़ा था ना, भक्ति मूवमेंट उस टाइम पे अपने पीक पे था। तो हुआ ये कि उस टाइम पे जितनी भी काम हम देखते हैं ना, आधे से ज्यादा कृष्णा जी और राम जी के काम हुए, क्योंकि उस टाइम पे भक्ति मूवमेंट प्रेवलेंट था, राइट। और इसमें क्या होता था कि कृष्ण जी को एज आइडल लवर, या फिर कैसे बताया गया है उनको कि जिससे सब क्रिएशन हुई है, जिसने पूरा ब्रह्मांड बनाया है, तो उनको या तो एक आइडल लवर के रूप में या फिर एक जिससे सारा क्रिएशन हुआ है उसके रूप में बताया गया है। और राधा को कैसे बताया गया है? राधा को एज ह्यूमन सोल। और इन दोनों का जो हम मिश्रण बोलते हैं, उससे इन दोनों का जो मिक्सचर होता है वो मिलके क्या बनता है कि एक ह्यूमन और एक भगवान के बीच का जो रिश्ता होता है ना, वो क्या होता है, वो कैसा होता है, वो इसमें बहुत सुंदर तरीके से गीत गोविंद पेंटिंग्स जो होती है ना, उसमें हमने देखने को मिलता है। कौन सी पेंटिंग्स में? गीत गोविंद पेंटिंग्स में। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, गीत गोविंद पेंटिंग्स में राम जी कृष्ण जी के और राधा को एज ह्यूमन सोल और कृष्ण को एज आइडल लवर या क्रिएटर के रूप में बताया गया है। Composed in the 12th century of Jayadeva, who is believed to have been the court poet of Lakshmana Sen of Bengal, Geet Govind, the Song of the Cowherd,
इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट स्टिल इज अ लिरिकल पोएट इन संस्कृत इवोकिंग श्रृंगार रस। श्रृंगार रस मतलब प्यार वाला। हम जब भी, जैसे अभी मैंने ऊपर बताया, कृष्ण जी को एज आइडल लवर बताया गया था, तो हम जब भी वो पेंटिंग्स देखते हैं तो हमारे अंदर एक श्रृंगार रस जागता है। श्रृंगार रस क्या होता है? आपने अक्सर सुना होगा 9 तरह के रस होते हैं। पहले 8 थे, फिर एक अभिनव गुप्ता ने दिया था और टोटल 9 रस हो गए थे। शांत रस जो सबसे लास्ट में आया था। ये 9 रस क्या है? ये 9 रस मतलब है, ये वो 9 इमोशंस हैं जो हमारे अंदर इवोक होते हैं जब भी हम कुछ भी आर्ट से रिलेटेड देखते हैं या सुनते हैं या करते हैं। जैसे पेंटिंग्स को देख के आपको गुस्सा आ रहा है तो वो रौद्र रस है। अगर पेंटिंग्स को देख के आपको एक प्यार वाली फीलिंग आ रही है तो वो श्रृंगार रस है। करुणा रस होता है, वीर रस, हमने झांसी की रानियों में सुना है वीर रस की कहानियां हैं वो, राइट? तो वो रस होते हैं, टोटल 9 तरह के रस होते हैं जो अलग अलग इमोशंस के लिए होते हैं। वैसे वैसे ही गीत गोविंद जो है वो क्या इवोक करता है? श्रृंगार रस। श्रृंगार मतलब लव। लव वाले जो इमोशंस इवोक करता है उसको बोलते हैं हम गीत गोविंद। वैसे ही अलग अलग मैंने आपको बता दिए, राइट? पोर्ट्रेइंग द मिस्टिकल लव बिटवीन, ये रहा पोएट्री, पोर्ट्रेइंग द मिस्टिकल love between Radha and Krishna through world imaginaries. Bhanu Datta, a Maithili Brahmin who lived in the Bihar in the 14th century, composed another favorite text of artist Ras Manjari, interpreted as the Bouquet of Delight. Written in Sanskrit, the text is a treatise on rasa and deals with the classification of heroes, nayakas, and heroines, nayaks and nayikas in accordance with their एज, विच इज बाल, तरुणा, प्रौढ़ना। बाल मतलब बचपन, तरुणा मतलब अडोलेसेंस वाली एज, और प्रौढ़ना मतलब एज वाला, मतलब बुढ़ापा वाला एज। Physiognomic traits of appearance such as Padmini, Chitrini, Shankhini, Hastini, etc., and emotional states such as Khandita, Vasaksaja, Abhisarika, Utka, etc. Though Krishna is not mentioned in the text, painters have introduced him as the archetypical lover. ये जितनी भी है रस मंजरी, रसिक प्रिया, अब हम आगे पढ़ेंगे रसिक प्रिया के बारे में, ये रहा, ये सब क्या है? श्रृंगार रस हमारे अंदर इवोक करते हैं, सारे लव इवोक करती है, ये सारे जितने भी ये है सबके अलग अलग है। किसी के अंदर राधा और कृष्ण को एज आइडल लवर्स बताया गया है, कोई ट्रांसलेशन है संस्कृत पोएट्स का जिसके अंदर अगेन कृष्णा जी को एज क्रिएटर बताया गया है। कहीं कहीं पे कृष्णा जी का डायरेक्ट मेंशन नहीं है इसलिए उनको आर्केटिपिकल लवर बताया गया है। ऐसा अलग अलग है ये सब। Is replete with a complex poetic interpretations and was composed to incite aesthetic pleasure to the elite courtiers. ये सब फैक्ट्स आपको इंपॉर्टेंट नहीं है याद रखने के, जो इंपॉर्टेंट मैं आपको अच्छे से समझा रही हूँ और मार्क भी कर रही हूँ और हिंदी में बता रही हूँ, सिर्फ वही इंपॉर्टेंट है। Composed by the ब्रज भाषा, composed in ब्रज भाषा में हुए सारे टेक्स्ट, by केशव दास, सारे नहीं एक्चुअली सिर्फ रसिक प्रिया, किसके द्वारा? केशव दास, the court poet of Raja Madhukar Shah of Orcha in 1591. Rasikpriya explores various emotive states such as love, togetherness, guilt, jealousy, quarrel, aftermath, separation, anger. And this is between the like common between the lovers represented through the characters of Krishna and Radha. So basically I'll tell you कि इस पूरे पैराग्राफ का क्या सिंपल मीनिंग है कि जब हम कभी भी बोलते हैं कि लव है किसी के बीच में, तो सिर्फ प्यार के अंदर एक हमेशा मीठी मीठी बातें हो, नहीं बाबू ने खाना खाया, सिर्फ ऐसा जरूरी नहीं है। प्यार के अंदर सारे इमोशंस होते हैं। कौन कौन से? जेलिसी भी होती है, जिल्ट भी होता है, क्वेरल भी होता है, मतलब क्वेरल मतलब होता है लड़ाई झगड़ा, सेपरेशन भी एक इमोशन हम फील करते हैं, एंगर भी फील करते हैं, राइट? अच्छा एक बात बताओ, आपका बॉयफ्रेंड किसी और से बात करे, आपको जेलेसी नहीं होगी? होगी। तो ये क्या है? एक प्यार का पार्ट है। क्या है? कॉमन बिटवीन लवर्स, दिस इज व्हाट कॉमन बिटवीन लवर्स। तो ये इसके अंदर रसिक प्रिया के अंदर बहुत ब्यूटीफुली ये प्यार के अंदर जितने भी छोटे छोटे और इमोशंस होते हैं उसको बहुत ब्यूटीफुली पोर्ट्रेट किया गया है। और कैरेक्टर्स कौन थे इसके अंदर? राधा और कृष्णा के थ्रू। जैसे एक पेंटिंग आई है अभी नीचे जिसके अंदर राधा और कृष्णा बैठे हैं और दोनों के बीच में एक गोपी खड़ी है और उसमें राधा जी को जेलसी हो रही है, या एक कहते हैं कि जेलसी भी हो रही है और एक तरीके से वो रूठी हुई है कृष्ण जी से, क्योंकि कुछ तो उनके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। तो ये जितनी भी पेंटिंग्स हैं इसके अंदर ये सारे इमोशंस के ऊपर बात की गई है। जब हम लॉन्ग डिस्टेंस करते हैं सेपरेशन फील नहीं होता है तो वो भी एक प्यार का पार्ट है। कभी कभी गुस्सा भी आता है कि तूने अपने साथ ये कैसे होने दिया, मतलब हम देख नहीं पाते किसी और के साथ बुरा हो रहा है जिससे हम प्यार करते हैं, राइट? तो ये सब प्यार का एक पार्ट है। तो वो रसिक प्रिया के बहुत सारे चीजों के अंदर बहुत ब्यूटीफुली पोर्ट्रेट किया गया है रसिक प्रिया पेंटिंग्स के अंदर। फिर आता है क्या? कवि प्रिया, अनादर पोएटिक बुक। कवि प्रिया नाम से ही समझ गए होंगे आप, पोएटिक, कवि मतलब पोएटिक,
और ये किसने वापस केशव दास, और ये किसके ऑनर में लिखी है, राय परवीन के ऑनर में। Celebrated as courtesan of Okra, it is a tale of love and its 10th chapter, evocatively called Baramasa, engages with the most enduring climatic descriptions of 12 months of the year. वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अभी हम 8 सब स्कूल के बारे में बात करेंगे आगे। जोधपुर, जयपुर स्कूल, बूंदी स्कूल, कोटा स्कूल, मारवाड़ स्कूल, है ना। हम 8 स्कूल के बारे में बात करेंगे। उसमें सबसे कॉमन जो थीम है ना, जिसके ऊपर सबसे ज्यादा पेंटिंग्स बनी है, वो कौन सी है? बारामासा। बारामासा मतलब क्या होता है? टोटल 12 मंथ ऑफ द ईयर को पोर्ट्रे करते हुए, क्लाइमेटिक दिखाते हुए वैसी पेंटिंग्स है। बेसिकली आप कोई भी पेंटिंग को देख के बता सकते हो कि अच्छा पतझड़ का मौसम चल रहा है, क्योंकि पेंटिंग्स के अंदर जो पेड़ दिखाए हुए हैं उसमें पत्तियां कम है। या फिर कोई पेंटिंग ऐसी होती है जिसको हम देख के बता सकते हैं ये भरी धूप या भरी गर्मी की पेंटिंग है ना। तो वो पेंटिंग्स को देख के हम बता सकते हैं। तो 12 मास मतलब 12 मंथ्स ऑफ द ईयर। 12 मतलब 12 और मासा मतलब मंथ्स ऑफ द ईयर को अच्छे से ब्यूटिफुली ब्यूटिफुली पोर्ट्रेट किया गया हो, उसे बोलते हैं 12 मासा पेंटिंग्स। वेल इलस्ट्रेटिंग डेली लाइव्स ऑफ द पीपल इन डिफरेंट सीजन्स एंड alluring टू फेस्टिवल्स फॉलिंग देयरइन। अच्छा, जैसे दिवाली, जैसे समझ लीजिए दिवाली बताया गया है कोई पेंटिंग में, तो हम उस पेंटिंग को देख के बता सकते हैं ना कि अच्छा दिवाली तो अक्टूबर नवंबर के आसपास का आता होगा। तो इसलिए हम अ, उस पेंटिंग में अगर दिवाली दिखाई गई तो वो उस मंथ ऑफ द ईयर की बात हो रही है, राइट। तो ये सब फेस्टिवल्स के थ्रू या अलग अलग तरीके से दिखाया जाता है, उसे बोलते हैं 12 मासा पेंटिंग। फिर बिहारी सच्चाई, ऑथर बाय बिहारी लाल। बिहारी सच्चाई, बिहारी लाल, ऐसे याद कर लीजिए। कॉन्स्टिट्यूटिंग 700 वर्सेस, is composed in the form of aphorisms and moral witticism. It is largely held that he composed the Satsai around 1662 while he was at the court of Jaipur working for Mirza Raja Jai Singh, as the patron's name appears in several verses of the Satsai. उस टाइम पे राजा जय सिंह थे, हमें ये कैसे पता चलता है? क्योंकि उस टाइम के काम में हमें सबसे ज्यादा इसका नाम देखने को मिलता है। पेट्रन कौन होते हैं? जो कमीशन करते हैं कि आर्टिस्ट। अच्छा एक बात बताइए, पेंटर कोई फ्री में तो पेंटिंग करेगा नहीं। अब इतने सारे आर्टिस्ट, इतने सारे हम सुंदर सुंदर काम देख रहे हैं, तो आर्टिस्ट जैसे मन से तो कोई काम करते नहीं, मतलब करते हैं मन से भी करते हैं, बट कोई तो मोटिवेशन होती है ना पीछे काम करने की। कुछ तो रिवॉर्ड सिस्टम होता है, तभी उनको और मोटिवेशन मिलती है अच्छा काम करने की। तो जो पैसा देते हैं आर्टिस्ट को या जो कमीशन करते हैं आर्टिस्ट को, उसको बोलते हैं उस टाइम का पेट्रन, मतलब उस टाइम का राजा जो उस पे पैसा डाल रहा हो, उसे हम बोलते हैं पेट्रन। The Satsai has been largely painted at Mewar and less frequently in the Pahari schools. Ragmala paintings are pictorial representation of ragas and ragini. जैसे हमने अभी 12 मासा पढ़ा था, 12 months of the year, वैसे रागमाला पेंटिंग्स होता है। रागमाला पेंटिंग्स क्या होता है कि टोटल हम जो म्यूजिक सुनते हैं ना, जैसे म्यूजिक को सुन के हमारे अंदर एक इमोशन इवोक होता है, राइट। वैसे ही रागमाला पेंटिंग्स मतलब कि अ, एक पेंटिंग को देख के हमारे अंदर एक एक अलग इमोशन इवोक हो रहा है। जैसे हम कोई गाना सुनते हैं, अचानक से गुस्सा नहीं आ जाता है, या कोई ऐसे गाना होता है सुनते ही डांस करने का मन कर जाता है, हम रोक ही नहीं पाते हमारे फीट्स। तो एक इमोशन इवोक हो रहा है। वैसे ही रागमाला पेंटिंग मतलब एक इमोशन इतना डीप इवोक होता है कि जो हम कंट्रोल नहीं करते हैं, कर पाते हैं हमारे आप को, हम अपने आप, उसे बोलते हैं रागमाला पेंटिंग्स। तो इसके अंदर हम क्या होता है, टोटल 32 या 46 पेजेस का एक पूरा सीरीज बनती है, अलग अलग, ठीक है। एक पेज, फिर 2 पेज, ऐसे टोटल 36 से 42 पेजेस की एक सीरीज बनती है। अलग अलग राग और रागिनीज होते हैं। राग मतलब मेल और रागिनीज मतलब फीमेल। ऐसे करके इनका एक पूरा ग्रुप बनाया जाता है। कितने पेजेस का? 62 या 42 पेजेस का। इसके अंदर एक राग होता है और एक राग की 6 रागिनी होती है। राग के नाम आप लोग याद कर सकते हैं, भैरव, मालकोस, हिंडोल, दीपक, मेघा, श्री। और हर एक राग की 6 फीमेल रागिनी होती है, ठीक है। एंड ऐसे इसकी एक पूरी फैमिली बनती है, पेंटिंग की फैमिली बनती है बेसिकली। जो भी हमने डिस्कस किया 36 टू 42 पेजेस की एक पूरी फैमिली बनती है। बेसिकली फैमिली मतलब एक पूरे एक जो बंच ऑफ पेंटिंग्स, इसको हम फैमिली बोल रहे हैं। ये पेंटिंग्स बनती है, इसको हम बोलते हैं रागमाला पेंटिंग सीरीज या रागमाला पेंटिंग एल्बम्स, ठीक है। जो कि स्पेसिफिक मूड, टाइम ऑफ द डे या एक सीजन को हमें दिखाने में हेल्प करती है, उसे बोलते हैं हम रागमाला। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रागमाला भी पेंटिंग्स जो है ना, हम नीचे 8 सब स्कूल्स है, सबसे ज्यादा काम रागमाला पेंटिंग्स पे हुआ है। तो दो अब तक हमने सबसे इम्पोर्टेंट कौन कौन से काम देखे, जो हर एक सब स्कूल में कॉमन थीम्स है, क्या क्या? एक तो रागमाला पेंटिंग्स और एक 12 मासा पेंटिंग्स, ठीक है। Next, Bardic legends and other romantic tales such as Dhola Maru, Sohini, Mahiwal, Mrighwat, Chaur Panchika, and Lord Chanda, just to mention a few other, are the favorite themes.
such as Ramayana, Bhagavad Puran, Mahabharat, Devi Matyanda, and like were the favorite of all the schools. अब ये जो है ना, बारामासा और रागमाला, ये तो क्या है, फेवरेट थीम्स है सारे 8 सब स्कूल्स के। ये तो थीम है। सब्जेक्ट मैटर फेमस क्या है जो कि सबके अंदर ऑलमोस्ट कॉमन है, वो क्या क्या है, ये वाला, रामायण, भगवत पुराण, महाभारत, देवी मत्यंदा, और ये सब क्या है, कॉमन टेक्स्ट है जो कि सबके अंदर, हम आठों सब स्कूल के अंदर ही कॉमन मतलब सब्जेक्ट मैटर है जो हमें देखने को मिलता है। तो कॉमन थीम्स क्या है, रागमाला और बारामासा, और कॉमन सब्जेक्ट मैटर क्या है, रामायण, भगवत पुराण, महाभारत और ये सब। Moreover, a large number of paintings record darbar scenes and historic moments depict hunting expeditions was, ये भी important है, hunting भी common theme है ना। कोर्ट के जो scenes होते हैं, दरबार सीन जिसको हम बोलते हैं, कोर्ट scenes, वो भी बहुत ही common themes हैं। रिचुअल्स या प्रैक्टिसेस, फेस्टिवल्स होते हैं, वो भी कॉमन थीम है। पोर्ट्रेट्स किंग्स के बहुत कॉमन थीम है। बर्ड्स, एनिमल्स, नेचर कॉमन थीम है। ये तो आप अपने मन से लिख सकते हैं, ठीक है। पर लिटरली, हम लिटरली मतलब होता है कि जिन पे जो लिटरेचर होता है उसे हम बोलते हैं लिटरेरी टेक्स्ट। लिटरेरी टेक्स्ट के जो सब्जेक्ट मैटर्स है वो है रामायण, महाभारत, भगवत पुराण, देवी मत्यंदा, ये सब। अदर थीम्स क्या क्या है, दरबार, कोर्ट, या फिर हंटिंग सीन्स, रिचुअल्स, फेस्टिवल्स वाले सीन, किंग्स के पोर्ट्रेट्स, बर्ड्स, एनिमल्स, पार्टीज वगैरह के पोर्ट्रेट्स, डांसिंग के अ, मतलब पेंटिंग्स, है ना, नेचर के ऊपर पेंटिंग्स, फ्लोरा फौना के ऊपर पेंटिंग, सिटी व्यूज के ऊपर पेंटिंग, ये सब अदर कॉमन थीम्स है, अदर सब्जेक्ट मैटर है, सॉरी। और कॉमन थीम्स क्या है, रागमाला और बारामासा। अब हम फर्स्ट स्कूल की बात करते हैं। फर्स्ट स्कूल कौन सी है, मालवा स्कूल ऑफ पेंटिंग। मालवा स्कूल फ्लरिश्ड बिटवीन 1600 टू 1700 सीई। एक और इम्पोर्टेंट चीज, अगर आपको हर एक, टोटल 8 सब स्कूल है, अगर आपको हर एक स्कूल का अलग अलग टाइम पीरियड याद नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं। आप राजस्थानी सब स्कूल जिसका की जो की टाइमिंग है 16th टू 19th सेंचुरी, आप वो भी लिखेंगे तो भी चलेगा। अगर आपको याद नहीं है पर्टिकुलर स्कूल का, तो आप राजस्थानी का लिख सकते हैं। एंड इज द मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द हिंदू राजपूत कोड्स। Its two-dimensional simplistic language appears as the consummation of the stylistic progressions from the Jain manuscripts to the Chaur Panchika manuscripts paintings, unlike the specificity of the Rajasthani schools that emerged and flourished in precise territorial kingdoms and courts of the respective kings. Malwa school defines a precise center for its origin and instead suggests a vast territory of central India, where it got articulated with a sporadic mention of few places such as Mandu, Nusratgarh, and Narsingh Sahar. Among the few early dated sets are an illustrated poetic text of Amaru Shataka dated 1652 CE and a Ragmala painting by Madhavdas in 1680 CE. A large number of Malwa paintings discovered from Datya Palace collection supports a claim for Bundelkhand as the region of painting. But the mural paintings in the Datya Palace of Bundelkhand defy a obvious Mughal influence, which is contrary to the works on the paper that are stylistically inclined towards the indigenous two-dimensional austerity. A complete absence of the mention of patron kings and other portraits in this school supports a view that these paintings were bought by Datya rulers from the traveling artist who carried paintings on the popular themes such as रामायण, भगवत पुराण, जैसे ही मैंने आपको बताया था पॉपुलर थीम्स, भगवत पुराण, रामायण, अमारू, शतका, रसिक प्रिया, रागमाला, बारामासा, कॉमन थीम्स है। हर स्कूल, हर दूसरे सब स्कूल में ये कॉमन थीम्स है, हर दूसरे क्या, हर स्कूल में। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि हमें ज्यादा पेट्रन के नाम नहीं दिखे या ज्यादा किंग्स के नाम नहीं दिखे। इसका मतलब क्या है, ये बाहर से लाई गई थी इस सब स्कूल की जो पेंटिंग्स है। किसने लाई होगी, दात्या रूलर्स, जो कि ट्रैवलिंग आर्टिस्ट से आए थे, ट्रैवलिंग आर्टिस्ट से उन्होंने ली होगी, दात्या रूलर्स के ने लाई होगी उनकी पेंटिंग्स। क्योंकि उस टाइम पे हमें एक स्पेसिफिक किंग या पेट्रन का नाम नहीं देखने मिलता है। अदरवाइज ये सारा आपको पार्ट लर्न करने की जरूरत नहीं है, आप एक बार रीड कर लीजिए 1 से 2 बार, बहुत है। The Mughal school dominates the scene with the 16th century through the courts of Delhi, Agra, Fatehpur Sikri, and Lahore. Provincial Mughal schools represented many parts of the country which, under the Mughals but headed by the powerful and wealthy governors appointed by the Mughal emperors, where pictorial language evolved through an amalgamation of Mughal and eccentric local elements. The Deccani school flourished in centers such as Ahmednagar, Bijapur, Golconda, and Hyderabad. ये हम पढ़ेंगे डेक्कनी स्कूल के अंदर, अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, ये ना हम डेक्कनी के अंदर पढ़ेंगे कि उस टाइम पे साउथ में ये चल रहे थे। तो राजस्थानी, क्योंकि राजस्थानी स्कूल हम पढ़ रहे हैं, ये क्या था, नॉर्थ इंडिया की बात कर रहे हैं हम, राजस्थान एरिया की बात कर रहे हैं। उस टाइम पे साउथ में ये डेक्कनी स्कूल थी जिसके अंदर अहमदनगर, बीजापुर, गोलकोंडा, हैदराबाद वाला पूरा एरिया जो है वो हम बात करते हैं।
और बेसिकली इस पूरे पैराग्राफ में बस यही है कि जो दिल्ली आगरा, अच्छा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि इसमें सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस मुगल स्कूल का हमें कौन से उसमें देखने को मिलता है, जयपुर स्कूल के अंदर। क्यों? क्योंकि जयपुर आगरा और दिल्ली से बहुत पास में है, और उस टाइम पे मुगल्स कहाँ रूल कर रहे थे, आगरा और दिल्ली में बैठ के रूल कर रहे थे। तो जयपुर स्कूल में हमें सबसे ज्यादा मुगल डोमिनेशन देखने को मिलता है। और बाकी में कुछ कुछ है जिनमें कम देखने को मिलता है, जैसे मेवाड़ के अंदर हो गया, मालवा के अंदर हो गया, इधर कम देखने को मिलता है। मेवाड़ इज कंजक्टेड, अब हम नेक्स्ट पढ़ रहे हैं ना, मेवाड़। सो मेवाड़ इज कंजक्टेड टू बी सिग्निफिकेंट अर्ली सेंटर ऑफ पेंटिंग ऑफ राजस्थान, from where hypothetically one would have been able to formalize a continuous stylistic tradition of painting from pre-17th century to bold indigenous styles of the subsequent refined and final style post Karan Singh's contract with the Mughal. However, long wars with the Mughals have wiped out most early examples. Therefore, the emergence of the Mewar school is widely associated with an early dated set of Ragmala paintings. Again, ये मैं आपको दो जो बता देती हूँ सब स्कूल्स जो है, ये एक तो मेवाड़ और एक मालवा। इसके ऊपर से शॉर्ट क्वेश्चंस ही आते हैं, इसके अंदर लॉन्ग क्वेश्चंस नहीं आते क्योंकि कंटेंट ही इतना सा दिया हुआ है ना, देख पा रहे हैं। और इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज सिर्फ यही है, दो तीन, मतलब 3 पॉइंट्स बन रहे हैं, मुश्किल से 4 पॉइंट्स आप मान के चल लीजिए। तो इसके अंदर से लॉन्ग क्वेश्चन कभी नहीं आएगा। लॉन्ग क्वेश्चन आएगा किशनगढ़ के अंदर से, लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है इसके अंदर डिफरेंस करने में, बूंदी कोटा के अंदर डिफरेंस करने में, जयपुर और उसके, है ना। तो इसके अंदर दोनों के अंदर से लॉन्ग क्वेश्चंस नहीं बनते क्योंकि इसमें काम ही इतना नहीं दिया हुआ है। जैसे में इसमें भी हम देखते हैं कि रागमाला पेंटिंग्स के ऊपर सबसे ज्यादा काम हुआ था। एक और क्या चीज इसकी थी कि बोल्ड इंडिजिनस स्टाइल पहले, और फिर बाद में मुगल के साथ जब मिल गए थे तो फाइनल काम होने लग गया था। पहले बोल्ड काम होता था, फिर बाद में मुगल के साथ मिलने के बाद फाइनल काम होने लग गया था। अदरवाइज इसके अंदर इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। सारे के सारे ऑलमोस्ट वाइप्ड आउट है क्योंकि लड़ाइयाँ वगैरह हुई होगी, तो आधे से ज्यादा जो पेंटिंग्स है वो खत्म हो चुके हैं, तो हमें अब देखने को ही नहीं मिलता है, तो हम क्या बात करेंगे इसके ऊपर। तो लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आते क्योंकि कंटेंट ही नहीं है इतना, है ना। एक पेंटेड इन 1605, ये है आर्टिस्ट नेम निसारदीन। आर्टिस्ट नेम जो है इंपॉर्टेंट सबके आपको लर्न करने पड़ेंगे, सब स्कूल्स के। जैसे इसका निसारदीन है, अभी आगे और आएंगे इसके दो और है। तो important आर्टिस्ट आपको याद करने पड़ेंगे। The set has a colon page that reveals the above vital information. This set shares the visual aesthetics and has close affinity with the pre-17th century paintings style in its direct approach, simpler composition, sporty decorative details, and vibrant colors. The reign of Jagat Singh I, recognized as the Jagat Singh I, हम ये patrons of kings के हम थोड़े थोड़े हमको पता चलते हैं, ये आपको learn करने पड़ेंगे हर सब स्कूल के। Recognized as a period when pictorial aesthetics got reformulated under the viscos of Shahibuddin and Manohar, दो हम ये देखें इंपॉर्टेंट पेंटर्स। अभी एक और आएगा जगन्नाथ नाम से, तो हम ऐसे उसको लर्न कर सकते हैं कि जैसे शहीबुद्दीन है, इसने क्या किया था, युद्ध कांड ऑफ रामायण लिखा था, युद्ध कांड ऑफ रामायण के ऊपर पेंटिंग्स बनाई थी। और मनोहर ने क्या बनाई थी, बाल कांड ऑफ रामायण के अंदर पेंटिंग। तो हमने देखा रामायण कॉमन थीम है इसके अंदर भी। अभी ये देखो रसिक प्रिया भगवत पुराण, अगेन वापस कॉमन थीम है, रागमाला। इसके इस सब स्कूल में, इससे पहले भी हमने जो स्कूल पढ़ी थी उसके अंदर भी हमने ये सारे काम देखे थे, रामायण महाभारत इसके ऊपर काम हुआ है, इस स्कूल के अंदर भी हुआ है ना। तो ये कॉमन थीम्स है, ये आप लर्न कर लीजिए, हर एक स्कूल में काम आएंगे लिखने में, सेम टू सेम है। तो इसमें इंपॉर्टेंट आर्टिस्ट क्या क्या है, शहीबुद्दीन, मनोहर, ठीक है। मनोहर का हमने क्या देखा, बाल कांड ऑफ रामायण है मनोहर का, उसका क्या था, युद्ध कांड ऑफ रामायण था, है ना, शहीबुद्दीन का। मनोहर का क्या है, बाल कांड ऑफ रामायण। इसके अंदर एक और है जगन्नाथ, जिसने क्या बनाया था, बिहारी सत्सई, इन 1719, ईयर याद नहीं रखेंगे चलेगा, which remains a unique contribution of the Mewar school. Other texts like Harivamsha and Sursagar were also illustrated in the last quarter of the 17th century, attributed to indigenous artist Shahibuddin. Yuddh Kand, the Book of Battles, is a chapter in the Ramayana set of paintings, popularly referred to as the Jagat Singh Ramayana. Dated 1652, Shahibuddin therein has crafted a novel pictorial device of oblique aerial perspective to impart credibility to the ambitious scale that war pictures encompasses. Deploying various narrative techniques, he either lays several episodes into a single painting as this one, or spreads a single episodes more than one folio. द पेंटिंग ऑलवेज पोर्ट्रेट्स, मैं इस पूरे का मतलब आपको बता देती हूँ यहाँ से यहाँ तक का, कि बेसिकली पेंटिंग्स दो तरीके से होती थी। या तो एक ही पेंटिंग के अंदर हम बहुत सारी कहानियां एक ही पेंटिंग के अंदर बता देते थे, कि इस पेंटिंग के लेफ्ट हैंड साइड में हम देख रहे हैं कि राम जी अपनी मम्मी के पैर छू रहे हैं, फिर हम बीच वाले में देखते हैं कि अरे राम जी और वो कुछ बात कर रहे हैं उनके गुरु, फिर हम देखते हैं कि वो फेंट हो गए अपने पापा की डेथ की न्यूज़ सुन के, फिर हम उसमें देख रहे कि वो अपने गुरुजी से कुछ, मतलब अपने भाई से कुछ बात करे या कुछ, और लास्ट में हम देखते हैं कि वो अपने सबको बाय बाय करके वापस अपना मतलब निकल रहे हैं, है ना।
करके। तो एक ही पेंटिंग के अंदर हम अलग अलग पूरा जो चैप्टर्स है ना, बहुत सारे चैप्टर्स एक ही पेंटिंग के अंदर हम देखने को मिलते हैं। या तो ऐसा काम हुआ है, या फिर एक ही काम को अलग अलग पेजेस पे अलग अलग पेंटिंग के अंदर बनाया गया है और उसकी पूरी एक सीरीज बनाई गई है। तो या तो हम ऐसे काम देखते हैं, तो या तो एक के अंदर ही सारे, जैसे कि ओवर मोर देन वन फोलियो, बहुत सारे एक के अंदर, या फिर सिंगल एपिसोड, या फिर एक ही सब में, है ना। तो ये इतने पूरे का यही मतलब है। कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज में दिया हुआ है, इसलिए आपको समझ नहीं आएगा, मैंने शॉर्ट में बता दिया। Painting in the 18th century increasingly sildered away from the textual representation to courtly activities and pastime of the royals. Mewar artists generally prefer a bright color palette with prominent red and yellows. अब ये आप ब्राइट कलर और रेड एंड येलोज का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यूज हुआ था, ये इसकी क्या है खास बात है। हर सब स्कूल की डिफरेंशिएटिंग फैक्टर क्या है, वो आपको याद रहना चाहिए। डिफरेंशिएटिंग फैक्टर मतलब अगर मैं बोलूँ कि कौन सा ऐसा सब स्कूल का जिसके अंदर ब्राइट कलर पैलेट थी और रेड और येलो का काम हुआ था, तो आपको पता होना चाहिए कौन सी थी। ये वाली है ना, मेवाड़। मेवाड़, है ना। ठीक है। अब नाथद्वारा, a close town to Udaipur, is a prominent Vaishnava center, also emerged as a school of painting in the late 17th century. Large backdrops called pichwai were painted on cloth of the deity Srinathji for several festival occasions. Basically श्रीनाथ जी की मतलब जो प्रतिमा होती है उसके पीछे एक बहुत बड़े कपड़े के ऊपर सुंदर सुंदर सी पेंटिंग बनाई जाती है, और फिर उसको उस वो श्रीनाथ जी के पीछे रखा जाता है कपड़ा। इसे बोलते हैं पिचवाई का काम, जो क्लोथ के ऊपर होता है, पिचवाई का काम। और श्रीनाथ जी के पीछे, श्रीनाथ जी की डीटी के पीछे की साइड रखा जाता है। स्पेशली फेस्टिवल्स के टाइम पे हम बहुत ही देखने को मिलता है। कहाँ पे? नाथ द्वारा में। नाथ द्वारा कहाँ है? उदयपुर के पास में एक छोटा सा टाउन है। Mewar painting in the 18th century increasingly became secular and courtly in ambience. Not only an increasingly fascination for portraiture emerged out, but sized out and flamboyant court scenes, hunting expeditions, festivals, Xena activities, sports, etc., were also largely favored as subjects. The folio depicts Maharana Jagat Singh II touring the countryside while on his way hawking. The country scape perceived in an oblique view that the horizon raised and the tangent in comparison to the foreground enables the artist to visualize a panoramic view. Panoramic view मतलब क्या होता है? हम मोबाइल में यूज नहीं करते हैं, एक फीचर होता है पैरो, मतलब एक ही टाइम पे हम पूरा 360 डिग्री व्यू ले सकते हैं, 180 डिग्री व्यू ले सकते हैं, उसको बोलते हैं पैनोरामिक व्यू। तो पेंटिंग्स भी पैनोरामिक में बनाई गई थी। द रेलेवेंस ऑफ द सीन लाइज इन इट्स कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ नरेशन दैट आल्सो एम्स एट द रिपोर्टेज। तो हम वैसा काम देखने को मिलता है। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट है कौन सी? थर्ड कौन सी? बूंदी। बूंदी है, इंपॉर्टेंट है। कोटा, बूंदी, जयपुर, जोधपुर सबसे इंपॉर्टेंट है, किशनगढ़, इनको मत भूलिएगा। प्रोलिफिक एंड डिस्टिंक्ट स्कूल ऑफ पेंटिंग। अच्छा एक काम करते हैं, हम ये सेकंड पार्ट में कर लेते हैं, वीडियो काफी लंबी हो गई है, हम बूंदी सेकंड पार्ट में करते हैं। थैंक यू सो मच। कोई भी डाउट से प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, कुछ भी और आपको पूछना है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। ये सब खत्म होने के बाद में मैं सारे इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर एटलीस्ट पिछले 5 साल के हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। और 30 मार्क्स का ही है, तो आप प्लीज अपने प्रैक्टिकल्स पे भी ध्यान दीजिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर।